A big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. Students, today we will learn about a very interesting subject, which is computer. So in this subject, we will learn how does a computer work, storage devices, input and output devices, MS Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Python, HTML, artificial intelligence and internet. Let's start our chapter. Managing files and folders in Windows 10. तो चलिए बच्चों देखते हैं चैप्टर के अंदर हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. Inside the chapter, files and folders, file explorer, selecting files and folders, working with files and folders and work ethics. Now let's start with link up. देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है. Where will you store the following things? Tick the correct option. Okay. So कपड़ों को देखिए बच्चों, कपड़े दिए गए हैं, इनको आप कहाँ स्टोर करेंगे? कबर्ड में या स्कूल बैग में? ऑफ कोर्स कबर्ड में करेंगे, राइट? इसी तरह से देखिए जार आपको दिया गया है, सो आप इसे क्या करेंगे? ओवन में स्टोर करेंगे या फिर रेफ्रिजरेटर में? ऑफ कोर्स हम रेफ्रिजरेटर में करेंगे, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा. इसी तरह से देखिए आपकी बुक्स एंड नोटबुक्स हैं, इसे आप कहाँ स्टोर करेंगे? स्कूल बैग में या शू रैक में? ऑफ कोर्स स्कूल बैग में. एंड आपकी पेंसिल है, इरेजर है, कलर्स हैं, आप कहाँ स्टोर करेंगे? लंच बॉक्स में या फिर पेंसिल बॉक्स में? ऑफ कोर्स पेंसिल बॉक्स में. ओके. Just as we organize our things at different places in the similar manner, Windows operating system lets us save and organize our work on the computer in the form of files and folders. Let us learn about them. So जैसे हम अपनी चीजों को different places में स्टोर करके रखते हैं ना, इसी तरह से Windows operating system हमें अपने काम को सेव करने देता है, ऑर्गेनाइज करने देता है फाइल्स एंड फोल्डर्स की फॉर्म में. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में कि एक्चुअल में ये है क्या. फाइल्स एंड फोल्डर्स. Data and information is stored in a computer in the form of files and folders. Files are used to store data and folders help us organize files in a proper and orderly manner. So data and information आपके कंप्यूटर में stored होते हैं files and folders की form में. फाइल्स का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए और फोल्डर्स हमें फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं एक प्रॉपर और ऑर्डरली मैनर में. ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फाइल्स. All the work that we do in a computer is stored in the form of file. A file contains anything such as drawing, text and or picture created using a software. It is a collection of data and information. A file can be a document file when we write in it. It can be a picture file when we draw and color in it. Every file has its own unique name. No two files of the same name can be saved at the same location in a computer. A computer represents files with icons. By looking at a file icon, we can tell what kind of file it is. So देखिए जो भी आप काम करते हो कंप्यूटर में वो फाइल की फॉर्म में आपका स्टोर होता है. फाइल में आपके जैसे कि ड्राइंग हो सकता है, टेक्स्ट या पिक्चर हो सकता है और ये कलेक्शन है आपका डेटा एंड इंफॉर्मेशन का. फाइल आपकी डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है. ओके, जब आप उस पर लिखते हैं. सो ये पिक्चर फाइल भी हो सकती है जहां पे आप ड्रॉ एंड कलर करते हैं. सो फाइल आपकी कुछ भी हो सकती है. हर फाइल का अपना एक यूनिक नेम होता है एंड कोई भी दो फाइल जिनका नेम सेम हो उनको सेम लोकेशन पे आप सेव नहीं कर सकते. कंप्यूटर जो है फाइल्स को आइकन्स के साथ रिप्रेजेंट करता है और फाइल आइकन पे आप देख के पता लगा सकते हैं कि किस तरह की ये फाइल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखते हैं ये वर्ड फाइल आइकन है एंड दिस वन ये तो हर किसी को पता है ये म्यूजिक फाइल आइकन है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोल्डर्स. फोल्डर्स क्या होते हैं देखते हैं बच्चों, हमने फाइल्स के बारे में पढ़ा. नाउ विल टॉक अबाउट फोल्डर्स. There are thousands of files stored in the computer. If you want to find out a particular file out of those 1,000 files which are stored in the computer, it will take a lot of time and energy. So these files can be organized into folders. A folder is a collection of similar files saved together under a common name. Just like a file, a folder has a unique name. Most folders contain files, but some folders contain additional folders, which we call subfolders. Subfolder is a folder within another folder.
A folder in a computer is also represented by an icon. By looking at these icons, we can differentiate between the folders. अच्छा देखिए, कंप्यूटर में तो थाउजेंड ऑफ फाइल्स स्टोर होती हैं. अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को ढूंढना है तो इन हजारों फाइल में से ढूंढना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत टाइम एंड एनर्जी लगता है. सो इन फाइल्स को अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है फोल्डर्स में. सो फोल्डर एक्चुअल में क्या होता है, ये कलेक्शन होता है सिमिलर फाइल्स का जो कॉमन नेम से आपके सेव की जाती है. सो फाइल की तरह फोल्डर का भी अपना यूनिक नेम होता है. ज्यादातर फोल्डर्स में आपके फाइल्स होते हैं, लेकिन कुछ फोल्डर्स में एडिशनल फोल्डर्स भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब फोल्डर. यानी सब फोल्डर क्या होता है, फोल्डर विद इन अनदर फोल्डर, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर इज सब फोल्डर. सो फोल्डर कंप्यूटर में देखिए वो भी आइकन से रिप्रेजेंट होता है और उन आइकन्स पे देख के आपको पता लग जाता है, आप फोल्डर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं. ओके चलिए, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये आपका कैसा है बच्चों, empty folder. And this folder, ये कैसा फोल्डर है, फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स, जिसमें फाइल्स हैं. एंड दिस वन, अब आप इसके आइकन से पता लगा सकते हैं, ये वो फोल्डर है जिसमें आपके सब फोल्डर्स हैं. ओके, नाउ योर टर्न. देखिए आपको क्या करना है, ड्रॉ एन एरो टू इंडिकेट सुटेबल फोल्डर फॉर द फाइल्स. तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या करना है, एक एरो को ड्रॉ करना है जो सुटेबल फोल्डर को इंडिकेट कर रहा है. ओके, सो फर्स्ट वन इज अवॉर्ड फंक्शन. ये आपका जाएगा किस में जाएगा बच्चों, पिक्चर्स फोल्डर में. वर्ड फाइल है ये डॉक्यूमेंट्स में, मॉर्निंग प्रेयर म्यूजिक फोल्डर में, पोएम्स म्यूजिक फोल्डर में, अर्थ पिक्चर फोल्डर में, और ये वर्ड फाइल है प्रोनाउंस, ये आपके डॉक्यूमेंट्स में, एंड रोबोट जिम ये आपके पिक्चर फोल्डर में. ओके चिल्ड्रन, फाइल एक्सप्लोरर. तो चलिए जानते हैं बच्चों फाइल एक्सप्लोरर क्या है. You would have seen the school librarian arrange and manage books on the bookshelves regularly. In the same way, we need to manage the files and folders stored in our computer. Windows 10 provides a useful program called File Explorer that allows us to view, create, copy, move, rename, delete, and search for files and folders easily. The various ways in which we can open File Explorer are as follows. So, आपने देखा होगा अपने स्कूल में जो स्कूल लाइब्रेरियन होते हैं वो बुक्स को अरेंज और मैनेज करते हैं बुक शेल्फ्स पे रेगुलरली. तो इसी तरह से हमें भी अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करना होता है जो आपके कंप्यूटर पे स्टोर होते हैं. सो विंडोज 10 में ना एक बड़ा ही यूजफुल प्रोग्राम है जो है आपका फाइल एक्सप्लोरर, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइल्स और फोल्डर्स को वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. सो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं. सो देखिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. Click on the File Explorer button on the taskbar or choose the File Explorer option in the Start menu. या तो आप इस File Explorer बटन पे क्लिक करेंगे जो आपके टास्क बार पे, या फिर आप स्टार्ट मेन्यू पे जाके File Explorer ऑप्शन को चूज करेंगे. ओके, The File Explorer window with a number of components appear as shown in figure. So कुछ इस तरह से आपकी File Explorer विंडो खुलेगी जिसमें आपके नंबर ऑफ components अपीयर होंगे. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं right pane displays the contents of the folder that has been selected in the left pane. So right pane आपके क्या डिस्प्ले करेगा, फोल्डर का कंटेंट जो आपका लेफ्ट पेन में सिलेक्ट हुआ है. ओके, देन left pane displays all kinds of locations such as this PC folder, devices and drives connected to your computer and other folders on your computer. Click a location to view its contents in the right pane. सो लेफ्ट पेन जो है बस हर तरह की जो लोकेशंस है उसको डिस्प्ले करता है, जैसे कि दिस पीसी फोल्डर, डिवाइसेस हो गए, या जो ड्राइव्स हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है या दूसरे फोल्डर्स के साथ कंप्यूटर में. सो आपने क्लिक करना है लोकेशन टू व्यू इट्स कंटेंट्स. ओके, देन वी हैव योर Quick Access is a vertical ribbon which shows a list of frequently used folders and recent files. So Quick Access जो है वो एक vertical ribbon है जिसमें जो frequently used folders and recent files होते हैं उनको ये display करता है. Okay, and यहाँ पर देखिए आपका the status bar displays the total number of items in a location or the number of selected items and the total size. So status bar जो total number of items है location में उसको show करता है, या number of selected items को show करता है और उनका total size. Okay. एंड यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आपके और है राइट साइड में. दिस बटन डिस्प्लेज द आइटम्स यूजिंग लार्ज थंबनेल. सो ये जो बटन है आपका बच्चों ये क्या शो करता है, ये उन आइटम्स को डिस्प्ले करता है यूजिंग थंबनेल्स, लार्ज थंबनेल्स. ओके, एंड देन उसके जो लेफ्ट में जो बटन है
दिस बटन डिस्प्लेज डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच आइटम इन द विंडो. ये हर आइटम के बारे में जो विंडो में है उनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सिलेक्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. सो किस तरह से फाइल्स एंड फोल्डर्स को सिलेक्ट किया जाता है देखते हैं. While working with file or folder, the very first step is to select the particular file or folder we want to work with. जब भी आपको फाइल या फोल्डर के साथ काम करना है तो पहला स्टेप होता है कि आपको पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस पे आप काम करना चाहते हैं. To select a single file or folder, click on it. To select multiple files and folders, select the first file or folder and continue to select the desired ones while keeping the control key pressed. To select all files or folders, press Ctrl+A. So single file या folder को select करने के लिए उस पर click करना है. मल्टीपल फाइल और फोल्डर्स को सिलेक्ट करने के लिए पहले आपने फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना है और फिर आप कंटिन्यू करेंगे जो भी आपको सिलेक्ट करना है डिजायर्ड वंस, लेकिन कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है. एंड सभी फाइल एंड फोल्डर्स को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस करेंगे. राइट, नाउ वर्किंग विथ फाइल एंड फोल्डर्स. A number of common tasks are performed in the files and folders. Let us learn about these tasks one by one. So बहुत सारे common tasks आप perform कर सकते हैं files and folders में. चलिए इनके बारे में one by one सीखते हैं. So सबसे पहले creating a new file or folder. Okay, एक new file और folder को create करना है. देखते हैं कैसे करते हैं. We can instantly create, name and store a new file in the preferable location without starting a program. Step 1. Open the folder in which you want to create a file. Step 2. Click on Home tab. Step 3. Click on New Item command in the new group. A menu will appear. Step 4. Click the type of file you want to create. An icon for the new file appears in the folder. So, आप देखिए इंस्टेंटली न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको नेम भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी प्रेफरेबल लोकेशन पे बिना प्रोग्राम को स्टार्ट किए. तो सबसे पहले फोल्डर को ओपन करना है जिसमें आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं. फिर होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू आइटम कमांड पे क्लिक करना है, आपका मेन्यू अपीयर होगा. फिर क्लिक करेंगे टाइप ऑफ फाइल जो आप क्रिएट करना चाहते हैं. सो आइकन जो है न्यू फाइल के लिए वो अपीयर हो जाएगा आपका फोल्डर में. ओके, एंड हियर इज अ नोट. इफ यू क्लिक ऑन फोल्डर, विंडोज क्रिएट्स अ न्यू सब फोल्डर. अगर आप फोल्डर पे क्रिएट करते हैं तो विंडोज जो है न्यू सब फोल्डर को क्रिएट करेगा. ओके, एंड द लास्ट स्टेप, Step 5, type the name for the new file and press the enter key. आपने new file के लिए name type करना है और उसके बाद enter key को press करेंगे. Okay? Next topic, creating a folder on the desktop. Desktop पे आपको folder create करना है. Okay? We can create our personal folder on the desktop to save files in it. Step 1, right click the mouse on a blank area of your desktop. A menu appears. Step 2, click on new option. A sub menu will appear. Step 3, click on folder option. Step 4, an icon for the new folder appears on the desktop. Type the name you want for the new folder and press enter key. So देखिए आप अपना पर्सनल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप में फाइल्स को सेव करने के लिए. सबसे पहले आपने ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है, मतलब राइट क्लिक माउस, मेन्यू अपीयर होगा, फिर न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सब मेन्यू आपका अपीयर होगा, फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर एक आइकन न्यू फोल्डर का आपका डेस्कटॉप पे अपीयर होगा. अब आप इसको नेम के लिए नेम टाइप करेंगे जो भी आप अपने न्यू फोल्डर को नाम देना चाहते हैं, एंड देन यू विल प्रेस एंटर की. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर. फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है, यानी उनको फिर से कोई एक न्यू नेम देना है. ओके, सो किस तरह से करेंगे बच्चों? चेंजिंग द करंट नेम ऑफ अ फाइल और अ फोल्डर टू अ न्यू वन इज कॉल्ड renaming. We can rename a file or folder to describe the contents of the file in a better way. To rename a file or folder, follow the given steps. Step 1, select the file or folder you want to rename. Step 2, click the rename command in the organized group on the home tab. Step 3, type a new name for the file or folder and then press the enter key. The new name appears under file or folder icon. So file का या folder का जो current name change आपने करना है न्यू वन में, उसे हम रीनेमिंग कहते हैं. ओके, सो देखिए किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले फाइल या फोल्डर जिसको भी आप रीनेम करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे, फिर रीनेम कमांड पे क्लिक करना है, फिर एक न्यू नेम आप टाइप करेंगे फाइल या फोल्डर के लिए और फिर प्रेस करेंगे एंटर. सो जो न्यू नेम है वो आपका अंडर फाइल और फोल्डर आइकन अपीयर हो जाएगा. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, कॉपिंग और मूविंग अ फाइल फोल्डर. Copying a file or folder means creating a copy of it and placing it at another location on a computer without removing it from its original location.
Moving a file or folder means shifting it from its current location to another place on a computer. So copying का मतलब क्या है कि फाइल या फोल्डर को की कॉपी को क्रिएट करना और फिर उसे किसी दूसरी लोकेशन पे प्लेस कर देना बिना उसकी ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव किए. सो फाइल या फोल्डर को मूव करने का मतलब है कि उसको शिफ्ट करना उसकी करंट लोकेशन से दूसरे प्लेस पे. ओके, सो कैसे करेंगे? स्टेप 1, ब्राउज टू द लोकेशन ऑफ द फोल्डर, फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी और मूव. स्टेप 2, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर. सबसे पहले आपने वो लोकेशन को ब्राउज करना है फाइल और फोल्डर की जिसे आप कॉपी या मूव कराना चाहते हैं, एंड देन उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे या फिर फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिसे भी आप मूव कराना चाहते हैं. राइट, आगे देखते हैं. स्टेप 3, click on copy or cut command in the clipboard group on the home tab. Step 4, navigate the folder where you want your file or folder to be pasted. Step 5, click on paste command in the clipboard group on home tab. Windows copies or moves the file or folder in the selected location. इसके बाद देखिए आपने कॉपी या कट कमांड पे क्लिक करना है, फिर फोल्डर को नेविगेट करेंगे जहां पे आप अपनी फाइल या फोल्डर को पेस्ट करना चाहते हैं, फिर पेस्ट कमांड पे क्लिक करेंगे. सो विंडो जो है आपकी फाइल या फोल्डर को कॉपी करेगा एंड मूव करेगा सिलेक्टेड लोकेशन पे. राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर. अब आपको किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है. Okay, so what will you do? We can delete a file or folder that is no longer required in the memory of the computer. To delete a file or folder, follow these steps. अच्छा, कई बार क्या होता है कि किसी फाइल या फोल्डर का कोई यूज नहीं है तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं. Okay, so step 1, open the folder that contains a file or folder you want to delete. Step 2, select the file or folder you want to delete. Note, if you want to remove more than one file, select all the files at once. Step 3, click on delete command in the organized group on the home tab. Step 4, a confirmation box opens on the screen. Click yes to confirm. तो सबसे पहले आपने फोल्डर को ओपन करना है जिसमें वो आपकी फाइल या फोल्डर है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं. फिर सिलेक्ट करेंगे फाइल को या फोल्डर को जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं. अच्छा, एक से ज्यादा अगर फाइल को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सारी फाइल्स को एक बार में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. फिर आपने क्लिक करना है डिलीट कमांड पे, एक कंफर्मेशन बॉक्स आपका आएगा स्क्रीन पे, सो आपने क्लिक करना है यस पे कंफर्म करने के लिए. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस? The file or folder disappears from the folder. अब आपने delete कर दिया है, confirm भी कर दिया, अब आपका वो file या folder disappear हो जाएगा आपके folder से, right? Move on to next topic. Restoring deleted file or folder. अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम फाइल और फोल्डर को डिलीट कर देते हैं बट हमें उसको रिस्टोर करना पड़ता है, कुछ काम होता है. ओके, तो कैसे करेंगे? देखिए, whenever we delete any file or folder, it goes into recycle bin where it stays for a few days or a few weeks depending on how often we empty the bin or how full the folder is. We can restore the file which is in recycle bin to its original location from where we had deleted it. So जब भी हम कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं बच्चों, वो आपका जाता है रिसाइकिल बिन में जहाँ पे वो कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक रहता है. वो डिपेंड करता है कि कितना फ्रीक्वेंटली आप बिन को एम्प्टी करते हैं या कितना आपका फोल्डर फुल है. सो हम रिसाइकिल बिन से उस फाइल या फोल्डर को रीस्टोर कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे जहां से हमने उसे डिलीट किया था. ओके, सो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा. To restore a deleted file or folder, follow the given steps. Step 1, double click on the recycle bin icon on the desktop. The recycle bin window appears, displaying all the files and folders you have deleted. Step 2, select the file or folder you want to restore. Okay, सबसे पहले आपने recycle bin पे double click करना है. Okay, so ये window आपका appear हो जाएगा recycle bin का. फिर यहाँ से फाइल और फोल्डर को आप select करेंगे जिसे भी आप restore करना चाहते हैं. Okay, and then finally आप क्या करेंगे? Step 3, click on the restore the selected items under the manage tab. The file disappears from the recycle bin and reappears in its original location. So इसके बाद आप click करेंगे restore the selected item पे और इसके बाद जो है वो फाइल recycle bin से तो disappear हो जाएगी लेकिन अपने original location पे वापस आ जाएगी. Okay, so इस तरह से ये फाइल या फोल्डर को हम restore कर सकते हैं. Right? चलिए. Now move on to next topic. Emptying the recycle bin. Recycle bin को कैसे खाली करना है? So whenever we want to remove any file or folder permanently from the computer memory, we have to delete that file or folder from the recycle bin. After deleting the file or folder from recycle bin, it cannot be recovered or restored. So जब भी आप कभी भी कोई फाइल या फोल्डर को permanently remove करना चाहते हैं कंप्यूटर मेमोरी से, तो आपको उसे recycle bin से delete करना पड़ेगा. और ये जरूर बात ध्यान रखेंगे कि recycle bin से आपका delete हो गया, इसको आप ना recover कर सकते हैं ना restore कर सकते हैं. Right? So किस तरह से देखिए हम
empty करेंगे recycle bin को. Some steps are there. Step 1, double click recycle bin icon on the desktop. Step 2, click on empty recycle bin button. Delete multiple items dialog box appears. Step 3, click on yes to permanently delete all the files in the recycle bin. So सबसे पहले आपने double click करना है recycle bin पे, फिर आप click करेंगे empty recycle bin button पे, और फिर आपका delete multiple item dialog box appear होगा. Then you have to click on yes to permanently delete जितनी भी files आपकी recycle bin में. Okay? Now move on to next topic, work ethics. While working on the computer in school or at home, we should take care of a few manners. These are: number 1, do not open files or folders created by others without their permission. 2, do not rename folders which do not belong to you. 3, do not copy someone else's work and show it as your own or copy others' work without their permission. Step 4, do not move the location of files or folders that do not belong to you. So देखिए, जब भी कभी आप स्कूल में या घर में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ मैनर्स का ध्यान रखना पड़ेगा. देखिए, कभी भी जैसे कि किसी और ने कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट किया है, उनके परमिशन के बगैर उसे ना ओपन करें. कभी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम ना करें जो आपकी है ही नहीं. किसी दूसरे के वर्क को कॉपी ना करें और उसको फिर ऐसे शो करें कि जैसे आपका वर्क है, ऐसा कभी ना करें. और फाइल्स या फोल्डर्स की लोकेशन को मूव ना करें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, मीन्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू. ओके, सो ये वर्क एथिक्स को आप इन मैनर्स को याद रखेंगे. राइट, व्हाट आई लर्न इन दिस चैप्टर, देखते हैं आप लोगों ने क्या सीखा. अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइडेंटिफाइड यूजिंग अ नेम. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड अ फोल्डर. File Explorer is used to manage files and folders on a computer. Copy means placing the same file or folder to a new location without removing it from its original location. Move means removing the file or folder from its original location and placing it to a new location. The deleted files or folders move into the recycle bin. And now it's time to do exercise. Learning outcome. A part, tick the correct answer. चलिए तो करेक्ट आंसर को हम टिक करते हैं. नंबर 1, द डॉक्यूमेंट वी क्रिएट इज कॉल्ड अ डैश. ए फोल्डर, बी फाइल और सी टेक्स्ट. इट्स अ फाइल. 2, a group of files stored under a common name is called a dash. A file, B cupboard or C folder, C folder. 3, changing the name of a file or folder is called A renaming, B copying, C removing. Answer is renaming. 4, deleted file goes into dash. A music folder, B recycle bin and C library. And the answer is recycle bin. Now move on to next question, B, fill in the blanks. So there are few words given in clue box जिनकी help से आपने बच्चों blanks को fill करना है. Okay. Number 1, a dash can organize and store related files in it. इसका आंसर होगा folder. 2, the deleted files and folders are stored in the dash recycle bin. 3, a dash is a collection of data identified using a name on the storage device. File. 4, you can press a dash keys to select all the files of a folder. Control plus A. Now move on to next part, C. Write T for true and F for false statements. चलिए statements check करते हैं. Number 1, a file is a collection of data and information. True. 2, a file and folder are represented with the same icon. False. 3, copying a file removes it from its original location. False. 4, we cannot restore all the files from the recycle bin. False. Now move on to next part. D, answer the following questions. So questions आपको given है students, इनके आंसर आपने खुद से करने हैं. Okay. Now move on to next part. And now it's time to apply your knowledge. Guess who am I? So यहाँ पे कुछ आपको clues दिए गए हैं और आपको guess करना है. So number 1, I am a collection of data and information. It's file. Okay. So इसी तरह से बच्चों आपने remaining parts खुद से करने हैं. Okay. I hope students आपको ये chapter समझ आया होगा, interesting भी लगा होगा. So students, keep doing practice of this chapter.